Hello students, welcome to the industrial management subject, lecture number 8. In the last class we have discussed line or scalar organization and one more is functional organization. Here you don't get confused, line or scalar organization is a different and line and staff organization is a different, because in your examination immediately, so in your mind, so you think line organization, line or scalar organization is a different, line and a staff organization is a different. Okay, you go to the structure, how it is. There is a general management, general manager. So in all, even in line or scalar organization, you have seen there is a general management. General management, how he is connected to all the people. Even in functional organization, even the main person is a general manager only. How he is connected to the people. Now line and staff organization, you see the structure, there is a general manager, under him there is a industrial engineer, then research engineer and one more work management. Industrial engineer and research engineer, they are not connected to the another category, that is a protocol. So like that, sales manager, production manager, they are not directly connected to the research engineer and industrial engineer, but they are connected to the general manager here. Okay, so industrial engineer is a different and research engineer is a different. They will work under the general manager. Then there is a work manager, under him there is a sales manager and one more production manager. Under the sales manager there is a sale functions. What are the, because under sales manager other subordinates are there, they are doing their work, they have to report to the sales manager. In the under the production management, again you have seen in the line and line or scalar organization, there are different departments are there. Individual department, there are foremans are there. Under the foreman there is a workers are there. So that you already know that these foremen, they will report to the production manager, then workers, they will report to the foreman. Then you see the structure here. There is a chief accountant, he is directly connected to the general manager, then only the production engineer. Under the chief accountant there is a finance department, then there is a cost accounting. These two categories, they will come under the chief accountant, and chief accountant, he is directly connected to the production manager. Okay, so this is the line and staff organization. In details we will discuss here. Line and staff organization, in a large scale enterprises, the managers cannot give careful attention to every part of the management. क्योंकि आप लोगों को मालूम है इतना डिपार्टमेंट्स रहता है, वो मैनेजर हर एक डिपार्टमेंट में इतना केयरफुल अटेंशन नहीं दे सकता है. सो दे आर अनेबल टू थिंक एंड प्लान एज दे मे बी बिजी विथ द प्रोडक्शन एंड द सेलिंग. सो उधर का वो प्लान करते रहता है. देयरफॉर सम स्टाफ्स आर डेप्यूटेड टू डू अदर वर्क्स सच एज इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च, रिकॉर्डिंग, प्लानिंग एंड एडवर्टाइजिंग टू मैनेजर्स. देयरफॉर द स्टाफ ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन बाय असिस्टिंग द लाइन ऑफिसर्स. हर एक आदमी को इतना सब ऑर्डिनेट्स रहता है, उसका अंदर इतना प्रोटोकॉल रहता है. सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो दैट टॉप पर्सन ही कैन नॉट गिव अटेंडेंस टू ऑल द पीपल. सो इसका वजह से उसका जो स्किल रहता है वो हिसाब से उसको आप लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा. देन अकॉर्डिंगली सो यू हैव टू मैनेज इट. The staff person usually controls one function of the business of which he is an expert. So in the previous point आपको बताया मैं, so वो आदमी किसके ऊपर स्किल रहता है वही हिसाब से उसको आप लोग जॉब देना पड़ेगा. He cannot concentrate on other functions. Generally the staff has administration authority, but he may report to the executive and gives the advice on the subject in which he is expert. उसको अथॉरिटी दिया रहता है एडमिनिस्ट्रेशन का, बट फिर भी उसका हाई लेवल जो उसका जो मैनेजर रहता है उसके साथ डिस्कशन करके उसका एडवाइस लेना पड़ेगा. देन ही कैन ऑल्सो गिव अ एडवाइस
उसके साथ कंप्लीटली डिस्कशन करके then only he can take a decision over here. Then what are the advantages? It is a planned specialized system. अभी आपको बता मैं किसके पास कौन सा स्किल रहता है वो हिसाब से उसको काम देना पड़ेगा. इसका वजह से आपका जो भी प्लानिंग करता है who is expert in which work, so accordingly you have to divide the work over here. Quality of product will be better comparatively other two organization. Wastage will be less क्योंकि वो उसमें एक्सपर्ट रहता है, वो वेस्टेज होने को देता ही नहीं. Sufficient time is available to general manager for future planning and expansion. क्योंकि इधर मैनेजर हर एक आदमी के पास जाता नहीं है, इसका वजह से उसको काम इतना बर्डन नहीं रहता, हर एक आदमी को देखना नहीं चाहिए करके. इसका वजह से ही कैन डू द बेटर प्लानिंग इन फ्यूचर एक्सपांशन के लिए. ठीक से काम हो रहा है तो सो ही कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन फ्यूचर प्लानिंग एंड एक्सपांशन. डिसिप्लिन प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बिकॉज ऑफ लाइन रिलेशनशिप. डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाता है उधर क्योंकि वो एक्सपर्ट रहता है, वही काम में बिजी रहता है. हाँ, वो जो भी एक्सपर्ट रहता है उसको काम दूसरा देना नहीं चाहिए आप लोगों को. सो ऑटोमेटिकली सो यू कैन मेंटेन द डिसिप्लिन इन सच ऑर्गेनाइजेशंस. Then what are the disadvantages? Sufficient expert knowledge and guidance is not available as compared with the functional type. ऐसा क्यों होता है इधर? क्योंकि हर एक काम के लिए एक एक बार एक्सपर्ट मिल नहीं सकता है. इसका वजह से जो टॉप मैनेजर रहता है, मैनेजर का मतलब ही इज परफेक्ट इन एवरीथिंग बट ही कैनॉट रीच द वर्कर ओवर हियर. वो गाइडेंस नहीं दे सकता है, एक एक बार फेल्यूर हो सकता है इधर. Lack of responsibility among higher levels and hence the discipline as whole will be poor. So इधर हम लोग एडवांटेजेस में डिसिप्लिन अच्छा रहता है करके बोल रहे थे, लेकिन इधर एक एक बार कैसा होता है मैनेजर लेवल वर्कर लेवल तक आता नहीं है. एक एक बार मैनेजर लोगों का डर नहीं रहता है, एक एक बार डिसिप्लिन प्योर हो सकता है. बट एज line staff organization, so automatically you may get the discipline over here. The overhead cost of product may rise because of high salaried staff. Automatically overhead cost मतलब एक मैनेजर से आप लोग पूरा काम चला सकते थे, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग मैनेजर रखने से क्या होता है हाई सैलरीड मतलब सैलरी देना ज़्यादा चाहिए, उसका वजह से ओवरहेड कॉस्ट बढ़ सकता है इधर. The slackness of any section or department will largely affect the whole working. Slackness of any section और department का इसका मतलब क्या होता है? So हर एक आदमी एक मैनेजर रहता है, वो एक एक बार स्लैक हो सकता है क्योंकि immediately he cannot reach the low level person. So automatically whole working so affect हो सकता है. So these are the main disadvantages of a line and staff organization. Then what are the applications where you can prepare this particular line and staff organization? Prepared for the medium and large scale industries depending upon internal structure, nature of productive activities and span of business area. नेचर ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, अभी आप लोग इतना बड़ा टाटा मारुति सुना होगा, सो इसमें लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन ही चाहिए. उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा रहता है, सो कितना डिपार्टमेंट रहता है, so what you want to achieve it, so in what period you want to achieve it, so accordingly you have to decide. So you want to go for line and staff organization क्योंकि आप लोग इतना बिजनेस मतलब इन्वेस्टमेंट कम रहता है. इमीडिएटली आई वांट टू गो फॉर लाइन स्टाफ एंड ऑर्गेनाइजेशन, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट क्योंकि आप लोगों का कैपिटल कम रहता है. वो हिसाब से ही आप लोग किए तो एक एक बार प्रॉब्लम हो सकता है. इट इज़ अप्लाइड इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज. It is applied in intermittent nature of industries. So these are the main applications of the line and staff organization. So next topic, so we'll discuss the leadership. So I think you might have heard boss and a leader. So हर एक industry or educational industry, whatever you can take example here, leader is a different and a boss is a different. बॉस का काम के इन सिंपल सेंटेंस आई कैन टेल बॉस ओनली ही कैन ऑर्डर बट ही कैन नॉट वर्क विद द सबऑर्डिनेट्स.
लीडर कैसा रहता है? लीडर he is in the top level management only, but he will work with the subordinates only. So कभी भी leadership quality आ गए तो so that particular industry can benefited, so they can achieve whatever they want. So इसीलिए कभी भी रिक्रूटमेंट करते वक्त लीडरशिप क्वालिटी देखना चाहिए. Leadership can be defined as the process of influencing the subordinates so that they cooperate enthusiastically in the achievement of group goals effectively and efficiently. मैं पहले ही आपको को एग्जाम्पल दिया है बॉस एंड लीडरशिप. बॉस एंड लीडर, लीडरशिप कैसा होना चाहिए? मोटिवेट करना चाहिए सबऑर्डिनेट को, उसके साथ काम करना चाहिए. सो तभी देन ओनली विल गेट द लीडरशिप क्वालिटी. सो एक बार आप लोग देखा होगा, बॉस चेयर में बैठा रहता है, सो ही विल नॉट डू एनीथिंग. लीडर ऐसा नहीं रहता है, आपको को एक बार समझता नहीं है, ही इज द टॉप लेवल मैनेजमेंट. So like that, so you have to become a leader, so you don't become a boss. In even when you go to any industries, when you achieve something, when you will be in a top level, because of your knowledge you may get a good job, but in the such time you don't become a boss, you become a leader. It can also be defined as the psychological process of influencing the followers or subordinates and guidance to them in their activities to achieve the enterprise goals effectively and efficiently. It is a psychological process, क्योंकि आप लोगों का जो भी सबऑर्डिनेट रहता है उसको स्टडी करो. स्टडी का मतलब अननेसेसरी डोंट गिव देम अ बर्डन, मेरे को ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली उसको समझो, उसका प्रॉब्लम क्या है, यू ट्राई टू सॉल्व देम एंड यू गेट द वर्क डन फ्रॉम दोज पीपल. दिस इज व्हाट द लीडरशिप. लीडरशिप इज एन एबिलिटी टू गेट डिजायरेबल एक्शन वॉलंटियरली एंड विदाउट फोर्स ऑफ द फॉलोअर्स. अभी मैं बोल रहा था तुमको, आप लोग एक बार बोलने के बाद आपका काम होना चाहिए. वो जो काम करने वाला डर के काम करना नहीं चाहिए, वॉलंटियरली काम करना चाहिए. सो इन दैट वे यू ट्रीट योर सबऑर्डिनेट्स. The success of leader depends upon his qualities and characteristics. ये क्वालिटीज का मतलब वो काम में वो भी एक्सपर्ट होना चाहिए, उसका कैरेक्टर भी ऐसा अच्छा होना चाहिए. एक को टारगेट नहीं करना चाहिए, ये मेरा बात सुनता नहीं है, उसको मैं ज़्यादा काम करके उसको मतलब उसको प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहिए. बिकॉज वंस यू गिव देम अ वर्क, वो बहुत खुशी से आपको काम करना चाहिए. सो इन दैट वे द लीडर यू शुड हैव that qualities and characteristics. Then what are the characteristics of a leadership? It is the process of influencing the group members. Influence करो आप लोग उसको. जो इन्फ्लुएंस करना मतलब ऐसा नहीं है झूठा वगैरह बोल के उसको काम करना नहीं चाहिए. Throughout your life he has to remember you. In that way you influence those people. It is related to the situation. वो जो सिचुएशन कैसा रहता है, यू एक्ट लाइक दैट एंड यू गेट इट वर्क डन. सिचुएशन एक बार उसका साइकोलॉजिकली उसको कुछ प्रॉब्लम रहता है, आप लोग उसको दबा मत डालो, उसका प्रॉब्लम क्या है. सो सुनने का भी आपको पेशेंस होना चाहिए उधर. सिंपली यू डोंट गिव द ऑर्डर देम. व्हाट इज देयर प्रॉब्लम्स, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, यू सॉल्व देम, देन यू गेट इट वर्क डन. लीडरशिप हेल्प्स इन अटेनिंग अ कॉमन गोल्स. लीडरशिप इज अ फंक्शन ऑफ मोटिवेटिंग द पीपल. मोटिवेट करो उसको. मोटिवेट कैसा करना चाहिए, आपके पास कितना पॉसिबल रहता है उसको हेल्प करो. सो ऑटोमेटिकली दे विल बिलीव यू, देन ऑटोमेटिकली दे विल वर्क हार्ड. लीडरशिप सेटिस्फाई द एम्प्लॉयज इन ऑल रिस्पेक्ट व्हाइल अटेनिंग द ग्रुप गोल्स. मेरा अभी एक का आप लोग सुना होगा, एक कंपनी में आप लोगों का भी भाई रहता है, पेरेंट्स भी काम करते रहते हैं. एक बार साइकोलॉजिकली कितना स्ट्रेस हुआ रहता है. एक पेरेंट्स साइकोलॉजिकल स्ट्रेस नहीं रहता है, क्योंकि उसका जो बॉस बोलते हैं हम लोग, उसका जो हायर अथॉरिटी रहता है, सो वो हिसाब से उससे काम लेते रहता है. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल, ग्रुप गोल.
So you have to satisfy the employees, then only so you can achieve something in your life. Then types of leader, authorization or autocratic leaders. Autocratic leaders, इसका मतलब क्या है, उसको सिर्फ फॉलोअर्स रहता है, उसको आर्ग्यू नहीं करते वो लोग, दे विल नॉट आर्ग्यू विथ एनीथिंग, वॉट एवर ही टेल्स दे विल फॉलो, सो दोस आर कॉल्ड एज अ फॉलोअर्स. Even in I'll suggest my students, don't become a follower. You be a creative minded. You have to be a creator. So then only you can achieve something in your life. This type of leaders lead their group through command and by developing faith in their followers. Such leaders give orders, assign duties, opinion. Such leaders never like to delegate their powers. उसको क्या है, सिर्फ कमांड देने का, बाय डेवलपिंग फेथ इन देयर फॉलोअर्स. ऐसा भी नहीं हो सकता है, चीटिंग नहीं करना चाहिए. बॉस सिर्फ कमांड करने का, एक बार आप लोग सुना होगा, चमचा लोग भी रहता है, उसको अननेसेसरी ये होता है करके ऐसा भी नहीं करना चाहिए. सो दैट इज अ अथॉरिटेरियन और ऑटोक्रेटिक लीडर्स बोलते हैं उसको. नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक और कंसल्टेटिव लीडर्स. डेमोक्रेटिव लीडर इसमें भी फॉलोअर्स ही है, लेकिन यू सी दैट एरो मार्क ऑटोक्रेटिक लीडर, so from that only the arrow mark it is showing it is a commanding, but here it is not like that. The follower, you see that connection of the arrow mark here. These leaders always work according to the wishes of their followers. They frame the policies and the procedures in consultation with the team them, but sometimes such leaders also work as a moderator of the ideas and the suggestions. आप लोगों को ये एरो मार्क देख के समझ सकता है डेमोक्रेटिक लीडर का मतलब क्या है. सिर्फ वो कमांड देता नहीं है, आप लोगों को जो फॉलोअर जो रहता है उसका अंदर जो सब ऑर्डिनेट रहता है उससे भी सजेशन लेता है. देन ही विल डिस्कस, ही विल कंसल्ट दोज पीपल. सो वी वांट टू डू लाइक दिस, व्हाट इज योर प्लान, व्हाट इज योर सजेशंस, देन दे विल टेक अ फाइनल डिसीजंस. देन टाइप्स ऑफ लीडर्स, वन मोर इज अ persuasive leaders. Such leaders influence their followers due to his personal contact to join with him in getting the things done. He gives directions personally and whole of the gang responds to his call because they love and respect him and full confidence in him. Persuasive leaders ये क्या करता है, influence their the followers, उसका personal contact से काम करने लेता है. Then functional leaders, such leaders lead because of their expert knowledge and win the confidence of their followers by their superior knowledge. हाँ, ये फंक्शनल नॉलेज का क्या रहता है, इतना एक्सपर्ट रहता है वो आदमी, हर एक प्रॉब्लम है तो ही विल गिव द सॉल्यूशंस. सो ऑटोमेटिकली आप लोगों को भी ऑर्गेनाइजेशन भी देख सकता है, द टीचर हु इज very much knowledge in that particular subject, automatically the student will respect them. This is the one simple example I can give. Even if you join any industry, you should have a basic knowledge what you are doing people, in that you go in deep and you get that knowledge. अगर आप लोगों के पास नॉलेज इतना है, इतना ईगो नहीं होना चाहिए, घमंडी नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू शेयर योर नॉलेज, automatically you will get the self respect over there. These functional leaders actually, even I suggest you become a functional leader. Such leaders lead because of their expert knowledge and win the confidence of their followers by their superior knowledge. So मेरे को इतना knowledge है, इतना घमंडी भी नहीं आना चाहिए. So you have to cooperate with your subordinates. Free rein leaders, free rein or laissez-faire leaders goes not lead but leaves the group entirely to itself. Such leaders use very little power and gives a high degree of independence in their working. These leaders are dependent on subordinates to set their own goals. So एक बार फ्री राइन लीडर्स का मतलब क्या है, आप जो फॉलोअर्स को कुछ भी बोलते नहीं, he will completely faith on you.
So whatever the orders come from the top, he will ask you to do that. So आप लोगों का पूरा भरोसा का ऊपर आपको काम दे देता है. So he will not interfere in any of them. Only he believes the followers should not cheat them. Okay, एक बार ऐसा इंडस्ट्री में हो सकता है, लेकिन such type of leaders are called as a free rein leaders. Then qualities of a good leader. Sorry. Intelligence and technical knowledge. A good leader must have an intelligence which is more than that of his followers. He must be able to understand and solve the problems accordance with the prevailing situation. अभी पहले ही बोल रहा था मैं, उसके पास इतना टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, इतना इंटेलिजेंस होना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट डिसीजन लेना चाहिए वो आदमी. वो क्वालिटी लीडर के पास होना चाहिए. इनिशिएटिव, ही मस्ट इनिशिएटिव गुड एक्टिविटीज एंड मस्ट बी कैपेबल ऑफ टॉकिंग इनिशिएटिव. अभी आप लोगों को पता है, किसको बोलने को ठीक से आता है वो कभी हारता नहीं है, लेकिन वो ठीक से बताने का मतलब किसी को चीट करके. अभी एक बार होते हैं हम लोग किधर कौन सा तो दुकान में जाते हैं, उधर सेल्समैन रहता है, सो इतना अच्छा बात करके आपको टोपी डाल के बेचते हैं उधर. ऐसा नहीं होना चाहिए. वो इनिशिएटिव ऐसा होना चाहिए, गुड एक्टिविटीज, ही मस्ट कैपेबल ऑफ टॉकिंग इनिशिएटिव. मतलब वो फॉलोअर्स को इतना ऐसा समझाना चाहिए वो करेक्ट है करके. वो झूठ रहता है उसको ऐसा नहीं है, वो एक्चुअल रहता है, उसको वो ठीक से वो एक्टिविटी का बारे में बोलना चाहिए. Pursuance is also good quality of leader. It also helps him in implementing his decisions and order, etc. Decisiveness, a leader must be able to make a proper decision at a proper time and must stick to it, as a lack of decisiveness result in the loss of efficiency. Generally, ability to decide comes from a self-competence. Say डिसीजनेस, ए लीडर इतना होना चाहिए, वो जो भी डिसीजन लेता है उसको स्टिक होना चाहिए, इतना डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसका डिसीजन एक बार कंपनी को लॉस भी हो सकता है, वर्कर भी लॉस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. एक बार रॉन्ग भी हो सकता है, बट ही एबल टू मेक अ प्रॉपर डिसीजन एट अ प्रॉपर टाइम. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हियर. एबिलिटी टू इंस्पायर, अ लीडर कैन नॉट डू होल ऑफ द वर्क हिमसेल्फ. वो सभी काम उसको करने को नहीं होता है, सब ऑर्डिनेटर रहता है, उससे काम करवाना पड़ता है. वो कैसा करवाना पड़ता है अभी आपको बता रहा था मैं. वो डिसीजन जो भी लेता है उसके पास नॉलेज रहता है, वो हिसाब से, सो ही हैज़ टू गेट इट वर्क डन फ्रॉम अदर्स पीपल. He has to inspire his men so as to get the work done from the conduct and personality of the leader and the standards set by him. मैं पहले ही बोल रहा था आप लोगों को, टारगेट किसी को टारगेट करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों को मालूम है हाथ में 5 फिंगर्स रहता है, दे आर नॉट ऑल द सेम. इवन स्टूडेंट्स, दे आर नॉट ऑल द सेम. ओके, एक डिस्टिंक्शन मारता है, एक बार फेल हो सकता है, राइट, एक बार सिर्फ पास हो सकता है, क्योंकि सभी को एक ही इनपुट देते रहता है टीचर. फिर भी ऐसा होता है क्यों? क्योंकि अलग अलग उसका आईक्यू लेवल अलग रहता है. वो हिसाब से हम लोग वी हैव टू आइडेंटिफाई द पीपल एंड अकॉर्डिंगली सो हैव टू गिव द टास्क टू देम. इवन आप लोगों को बोलते रहते हैं आप लोग, एक बार एक आदमी पढ़ के आराम से एग्जाम लिख सकता है, एक बार हार्ड स्टडी करना चाहिए. क्यों? क्योंकि हर एक का आईक्यू लेवल अलग रहता है. सो हिसाब से एबिलिटी टू इंस्पायर, एक आदमी ऐसा है उसको ऐसा इंस्पायर करना चाहिए, दूसरा ऐसा है, सो अकॉर्डिंग टू ही साइकोलॉजी सो यू हैव टू बिहेव. रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ लीडर मस्ट बी एबल टू नो एंड फील हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ही मस्ट नॉट shirk, that is a neglect his responsibilities, and must be in a position to take the burden of decision on his shoulders. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब भागना नहीं चाहिए. वो जो भी रहता है, एक आदमी का ऊपर भरोसा रहता है, एक बार भाग जाता है, वो
एक बार ऐसा रहता है, ये आदमी कर सकता है करके बोलते हैं लीडर, लेकिन वो भाग जाता है, लेकिन वो बोल करता नहीं है करके वो लोग लीडर भागना नहीं चाहिए. सो ही हैज़ टू फाइंड अदर सॉल्यूशन एंड he has to complete that work. Social consciousness, he must always realize that he is dealing with a human being who are also having feelings of social status and a sense of respect. अभी मैं बताया मैं. सो ऑलरेडी आई टोल्ड दैट 10 वर्कर है, 10 वर्कर अलग अलग फैमिली भी सोशल प्रॉब्लम्स रहता है, वो देख के उसका ऊपर आप लोग काम देना चाहिए. अननेसेसरी आप लोग हम लोग unnecessary we are forcing to do the work, sometimes we will fail there. Other qualities: faith and respect, affection, skill, vigilant, maturity, adjustable, open minded, good health, communication skill, teaching abilities, creative thinking. So these are the other qualities of the good leader. अगर आप लोग को भी गुड लीडर बन सकते हैं, सपोज इफ यू फॉलो दीज थिंग्स. ऐसा नहीं चाहिए मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है, सो आई विल नॉट बिकम अ लीडर. लीडर सिर्फ एक इंडस्ट्री का लीडर ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं. आपके पास जो भी नॉलेज है, सो आप लोग ठीक से यूज किए तो यू विल बिकम अ लीडर ऑफ अदर देन द टेक्निकल. सो यू विल बिकम अ लीडर, बट यू डू इट एथिकली. Then there is a motivation. Motivation can be defined as the process of influencing the person to inspire or impel to intensity his willingness to use his capabilities and potentialities for achieving goals of organization in which he works. अभी मैं काम कर रहा हूँ, मतलब मेरा सब ऑर्डिनेट्स रहता है, उसको मैं ऐसा मोटिवेशन करना चाहिए, वो इंस्पायर होना चाहिए. मेरा इंटेंसिटी क्या है? सो आई हैव टू गेट द माई पर्टिकुलर गोल. झूठा इन्फ्लुएंस करना नहीं चाहिए. सो यू डू इट एथिकली, इन्फ्लुएंस देम. अगर आप लोग ये काम किए तो यू विल बी बेनिफिटेड लाइक दिस. सो मैं भी बोलते रहता हूँ, स्टूडेंट, इफ यू गेट अ गुड मास and good knowledge, automatically you'll have a better future. Motivation can also be defined as the psychological act which attracts the workers to do more work and instigates. So psychologically आप लोग उसको मोटिवेट करना चाहिए. एक एक बार लीडर बोलते रहते हैं, आप लोग देखते हैं अभी मोदी जी का, आई विल नॉट टेक दैट मोदी जी, सॉरी. सो ये लीडर ऐसा होना चाहिए. सो पॉजिटिव थिंकिंग उसमें डालो. मतलब मेरे को इंडस्ट्री को पैदा ऐसा नहीं है. इफ द इंडस्ट्री विल बी बेनिफिटेड, ऑटोमेटिकली द वर्कर विल बी बेनिफिटेड. सो लाइक दैट यू हैव टू मोटिवेट देम साइकोलॉजिकली. इंस्टिगेशन में भी पॉजिटिव, दैट इज बाय encouraging टू डू वर्क, और मे बी नेगेटिव, दैट इज बाय फर्निशिंग फॉर अ रॉन्ग वर्क. इंस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? द वर्कर्स टू डू मोर वर्क. द साइकोलॉजिकली उसको पॉजिटिव ही बोल सकता है, और इंस्टिगेट्स का मतलब क्या होता है? नेगेटिव होता है. अगर आप लोग इतना टारगेट नहीं अचीव किया, आपका इंक्रीमेंट नहीं है, दिस इज व्हाट नेगेटिव. एनकरेजिंग मतलब ये टारगेट रीच करो, आप लोग को इतना इंक्रीमेंट मिल सकता है उधर. सो दिस इज द पॉजिटिव. मैं इंक्रीमेंट देता नहीं, आपका पेमेंट कट करता हूं. सो दिस इज व्हाट द नेगेटिव इंस्टिगेशन. दैट इज द व्हाट द फर्निशिंग. आप लोग गलती किए तो सो आपको फर्निशमेंट करता हूं मैं. हियर बोथ स्कीम्स आर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. Motivation of the workers is a very important when the supervisor wants to get the things accomplished by them at a right time, in the right quantity and of a right quality. So एक एक बार ऐसा भी हो सकता है. So मैं भी पता, already I told you that all persons are not the same. एक एक लोगों को ऐसा करना चाहिए, आप लोगों को दबाव देना चाहिए, क्योंकि काम चोर रहता है. अगर आप लोग नहीं किया, सो आपको ये पनिशमेंट, इंक्रीमेंट नहीं देगा. सो दोनों होना चाहिए, क्वालिटी भी आना चाहिए, क्वांटिटी भी होना चाहिए. बट आई डोंट से दैट एवरी टाइम. सो यू हैव टू इंस्टिगेट. इंस्टिगेशन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव
इसमें का मतलब क्या है, हमेशा नेगेटिव नहीं होना चाहिए. Psychologically you try to understand those workers accordingly, so we can go for the instigates over here. So with this, so we will end the session, and we will discuss the next class, that is the Maslow's theory of a motivation. Okay, so there is a hierarchy of needs, then we will discuss in the next class. Thank you.